Hello everyone, I'm Dr. Anuradha Punyani and we're back with another video at BFF Best Foot Forward. Recently मैं कुछ रोट्रैक्टर्स के साथ में एक वेबिनार में डिस्कस करी थी जो आजकल हम बहुत सारे डिफरेंट फिटनेस वर्कआउट्स देखते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपने वर्कआउट्स डालते हैं, तो ये सारी टर्म्स यूजुअली हमें समझ में नहीं आती है और इसीलिए आज हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं. इसके पहले we have seen a lot of videos on pain and exercises, so I thought of a slight variation और ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप डिफरेंट वर्कआउट्स में से अपने लिए अपने हिसाब से एक वर्कआउट चूज़ कर सकते हो so that you stay active in this lockdown. So let's see 5 basic workouts which people do and which are getting very popular and getting trendy these days और वो हम देखते हैं कि क्या है exactly. Talking about the first regime, that is CrossFit training. अब ये भी हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को सुना है बोलते हुए और इनफैक्ट अपने इंस्टाग्राम पोस्ट डालते हुए that they go for CrossFit training. Now CrossFit training is something when you set a particular goal और वो अचीव करने के लिए जो जो एक्सरसाइजेज आपको लगता है कि will help you, you pick them up with the help of a trainer, of course. Alright, so supposing you choose कि आपको arm strength develop करनी है, you want to play a sport like badminton. So what you do here is you choose your days कि say around 3 days a week you are training in particular strength training exercises जैसे डम्बल्स हो गए, equipments यूज़ करके हो गए या फिर आपने functional training के कुछ elements उसमें include किए हैं. Okay, functional training we'll be discussing later. Alright, ऐसी चीज़ें आपने include की है and then the rest of the days you do simple exercises which help you increase your flexibility. Okay, as well as improve your strength. So supposing आपने 1-2 दिन योगा ऐड कर दिया, so basically it is a mix match type of a regime which you can practice to achieve a particular goal. Definitely इसके advantages है that you have a huge energy use in it and you can achieve your particular goal. Okay, so it is goal oriented in this case and it's not just any haphazard fitness program. The next one that we talk about is HIIT. Now HIIT का फुल फॉर्म होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. अब ये थोड़ा ज़्यादा साइंस बेस्ड है लेकिन इसमें बेसिकली यूसेज ये रहता है कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं और फिर उतना ही थोड़ा ड्यूरेशन के लिए हम रेस्ट करते हैं. सो इसमें ऐसा है कि रेस्ट इंटरवल्स भी इंक्लूड होते हैं और साथ में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है. ऑलराइट, और इसके बेनिफिट्स यही है कि ऑल द टाइम यू आर इन्वॉल्व, बहुत एनर्जी यूसेज रहता है तो उसकी वजह से फैट बर्निंग बहुत फास्ट होता है. एंड सेकेंडली आपको ज़रूरी नहीं है इक्विपमेंट्स यूज़ करना, इसमें भी आप अपने वर्कआउट का प्रोग्राम चेंज कर सकते हो. ओके, सो यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है. यू कैन पुट इन वेरिएशंस, यू कैन पुट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज एज यू वांट एंड एज यू लाइक इट. एक ही मोटिव है कि इंटेंसिटी हाई रखनी है और शॉर्ट रेस्ट पीरियड्स देने हैं और जब ये तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आप थक नहीं जाते. और इसके साथ में यू कैन इंक्लूड सर्किट ट्रेनिंग. Now circuit training is something in which आप in a circle आप exercises decide करते हो, say around 5 or 7 exercises and उसके बीच में rest period भी देते हो. So supposing the first one you do is jogging, then you take 10 seconds rest, then you go ahead to another exercise, say biceps curls, okay, and then again you take rest. अब ऐसे ही पूरे movement करते करते you complete a circle and then you go back to the first exercise. Okay, so supposing this is about 5 or 7 exercises. This can be included in HIIT again, that is high intensity interval training. Moving to the third exercise program that is very common and very popular these days, that is Pilates. Now बहुत लोगों के questions मेरे पास में यही आते हैं कि Pilates exactly है क्या. So let us first understand before you jump into it कि ये बहुत सारे लोग कर रहे तो you want to follow it. पहले समझ लेते हैं ये क्या है. Pilates is basically an exercise program जिसमें हम बहुत ज़्यादा equipments नहीं यूज़ करते हैं unless आप उसके higher advanced stages में चले जाओ. Basically आप mat पे exercise करते हो और अपने body weight को ज़्यादा यूज़ करते हो. Alright, और Pilates की special advantages ये होते हैं कि आपका posture correct करने में बहुत help करते हैं and secondly it also helps in correcting your muscle strength and weaknesses. इसका मतलब ये कि जैसे मैं हमेशा मेरी वीडियोज़ में मेंशन करती हूँ कि हमेशा यूसेज की वजह से आपके वर्क के हिसाब से आपकी कुछ मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है और कुछ मसल्स वीक रह जाती है. ओके, तो उस वजह से जो टाइटनेस रहती है वो रिलीफ भी होती है यहाँ पे और जो वीक मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, विच इज़ वाई पिलाटीज इज़ अ ग्रेट वर्कआउट इफ़ यू वांट टू ऑप्ट आउट फॉर इट. Moving to the fourth exercise, that is aqua aerobics. Now this is my personal favorite.
and I have always recommended people to get onto it. But abhi bhi this is still in the growth stage in the other cities except metro cities. And basically इसका फॉर्म ये रहता है कि you perform all of these exercises जो हम अभी mention करते हैं into the pool. अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग इन पूल आपको समझ में नहीं आता आपकी कैलोरीज कितनी बर्न हो जाती है. सो डेफिनेटली यू लूज अ लॉट ऑफ वेट, यू एक्सरसाइज मच मोर. एंड सेकेंडली आपका एक साइकोलॉजिकल उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रहता है वेर यू फील वेरी हैप्पी स्टेइंग इनसाइड पूल. लाइक हू डज नॉट लाइक टू एक्सरसाइज इन द पूल, राइट? So that is one advantage of doing aqua aerobics, and it can be done with or without equipments. Finally coming to the fifth exercise program, that is functional training. जैसा हमने फर्स्ट एक्सरसाइज प्रोग्राम में भी डिस्कस किए थे, फंक्शनल ट्रेनिंग इज समथिंग जिसमें आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जो आप डेली बेसिस पे वैसे ही करने वाले हो, ओके? बट इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम एज प्रॉपर स्टेप्स में शेड्यूल करके we first improve the strength and then we go ahead to move doing it on a regular and a stronger basis. जैसे अगर आप कोई चीज़ के लिए डिसाइड किया है कि अब ये ट्रेनिंग करनी है, तो उसके लिए पहले हम बेबी स्टेप्स लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो स्ट्रेंथ और वो मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं, और उसके बाद में हम उसको होल सोल जाके उसकी फुल एक्टिविटी में जाते हैं. ओके, सो बेसिकली व्हाट वी डू हियर इज़ कि एक एक्टिविटी को हम 4 एक्टिविटी में शॉर्ट ब्रेक डाउन करेंगे, ईच इसको मास्टर करेंगे, और उसके बाद में हम फाइनल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज फंक्शनल ट्रेनिंग. अगेन इट इज़ वेरी पॉपुलर. अब ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हमने डिस्कस किए हैं, इनमें से काफ़ी सारी आप अभी भी लॉकडाउन में शुरू कर सकते हो, एंड यू कैन कंटिन्यू देम इवन आफ्टर द लॉकडाउन. ओके, सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़, please subscribe to our YouTube channel, that is BFF Best Foot Forward, and do like us on Facebook and Instagram. Until then, stay home, stay safe, and please stay active. Thank you.